class. Here is Sadia, your instructor, and today I am here with the lecture number 5, journal posting. This is the very first step of accounting cycle, and we will learn in this lecture how to analyze a financial transaction and how to make a journal entry, मीन द पोस्टिंग इन द जर्नल एंट्री। किस तरह से जो है वो हम बेसिक जो स्टेप है उसको परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे। सो प्लीज रिमेन विथ मी। व्हाट इज अ जर्नल? जर्नल होता क्या है? जर्नल बेसिकली इट्स मीन डे टू डे, because we record all the transaction on daily basis. We not wait for the whole month, for the whole year, not at all. We just record the transaction day by day. If it is 28 April, then we will record all the 28 April's transaction in a journal book. So day by day entries का record जो होते हैं वो journal में रखा जाता है, इसीलिए इसका जो मीनिंग है वो डे बाय डे है, डेली बेसिस पे जो रिकॉर्डिंग होती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ जर्नल। सो इसकी वही बेसिक टाइप जो है वो हम इसको कहते हैं जर्नल। मैनी ऑफ टाइम इसको जर्नल भी पुकारा जाता है, लेकिन हम इसे जो है वो मोस्टली जो है कॉमनली इसको जर्नल भी कह दिया जाता है। ऑलराइट, सो वेरी बेसिक स्टेप इज preparing a journal. So how we can prepare a journal? Before this we should definitely have a transaction. मेरे पास कुछ ट्रांजेक्शन के एग्जाम्पल हैं जो मैंने आप ही की रिकमेंडेड बुक्स जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय मिक्स एंड मिक्स से ली है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे भी जो है वो रीड आउट कीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो बेटर हो सके। मोर देन आप जो है वो मेरे साथ डिस्कशन में रहेंगे, ऑनलाइन क्लास जब भी मेरी आपके साथ होगी तो हम इन सारी ट्रांजेक्शन को, या जो भी आपके पास ट्रांजेक्शन प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल होंगी, वी विल मेक डिस्कशन अबाउट इट। जो भी प्रॉब्लम होंगे वो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। So I have a few transactions. We will analyze this transaction. उन ट्रांजेक्शन्स पे रूल, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करेंगे, और रूल्स अप्लाई करने के बाद हम उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, ये चीज़ जो है वो आज हम सीखेंगे। Okay, in front of you class, here is a very format, very simple format of the journal. एक फॉर्मेट होता है जिसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। यू हैव अ इनवॉइस, यू हैव अ बिल, you have a statement, any type of statement, that's mean you have a evidence of transaction. अब आपके पास एविडेंसेस आ चुके हैं ट्रांजैक्शन के। अब ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करने का जो वेरी फर्स्ट स्टेप है दैट इज द जर्नल। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ जर्नल। हियर इज द वेरी फर्स्ट कॉलम विद डेट। यू मेंशन हियर द डेट, like today is the 28. You can mention here the serial number 1 2 3 mean number of transaction, then the date 28 April, 29 April, 4 May, 6 May, whatever the date on which the transaction happened. So you can mention here the date and the serial number in this column. This is the particulars is here mean the items are the account which is affected in the transaction. जो भी ट्रांजैक्शन में अकाउंट है जिस पे जो अफेक्ट कर रहा है, जो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, यू विल मेंशन हियर, एंड बिलो द अकाउंट्स यू विल मेंशन अ वेरी स्मॉल डिटेल डिस्क्रिप्शन, वी कॉल इट अ डिस्क्रिप्शन. सो यू विल मेंशन हियर द अकाउंट नेम एंड द डिस्क्रिप्शन. Please ignore this one. This is not, you have no concern with this column. The next is the debit and the credit. So here is a debit column and here is the credit column. You have no need to divide the number of 5 columns. You can use only a 1 column. Okay, here is the 1 2 3 4 5 columns in the debit, 1 2 3 4 5 columns in the credit. You can use the 1 column too, no issue at all. So the right side of this pro forma is the credit and the left side is the debit. Remember it, debit and credit rules, it is also a rule.
credit is always recorded at the right hand side and the debit is always recorded in the left hand side. So this is the basic performer of the journal in which we record all the transaction. Here we will record all the transaction. Here we will mention the date and the serial number, and against the each transaction we will mention here the debit amount, and here we will mention the credit amount. Keep in your mind every entry should have a some balance of debit and some balance of credit. For every transaction the balance of debit should be equal to the balance of credit. Keep in your mind for every transaction the balance of debit should be equal to the balance of credit. So let's start analyzing the transaction and how we can record in the journal. Okay, here is the first transaction which happened on January 20. Mutual and family invested $80,000 cash in exchange for capital stock. He is a shareholder, or maybe she is a shareholder. So here she is a shareholder. He and his family invested $80,000 cash. Transaction, this is a transaction. You will find these types of statement in the form of transaction with the date. So my mutual and family invested 80,000 cash in exchange for capital stock, mean they invested in the business and they purchase shares of business and become the shareholders. So they invested the 80,000, means they business is increasing in the cash. Let's start analyzing of this transaction. The asset is here cash. Asset is here cash, is increased by 80,000. Clear? Asset is the cash which is increased by 80,000. So it was the rule we have studied about the debit credit. Increase in assets always recorded by debit, because the normal balance of the asset is the debit. So asset is increasing, so we will record in the debit side. Fine. Cash 80,000. Here is a very simple January 20 column, cash by 80,000. You can see here the difference. Actually this is the column of our debit side, the credit side, and this column is for the debit side. So cash is increasing, so we are going to record the cash in the debit side. Okay, the second part of this of this transaction, cash invested and capital stock means share owner's equity. Owner's equity is increased by the same amount. Definitely the price of the stock which are purchased by mutual, $80,000 is definitely have the same value. So 80,000 cash invested in the business and owner's equity is also increased by the $80,000. So owner's equity when increased, it always recorded in the credit side. Yes, you are right, it always recorded in the credit side. So capital stock here definitely you should not have it in the parallel with the cash. They should be the right left hand side, it should be some the right hand side. So cash 80,000 and capital stock 80,000. I was telling you people that there should be the same balance of the debit and the credit side, and you can observe here is 80,000 in the debit side and the 80,000 in the credit side. Both debit and the credit side have the same balance. Okay, let's move toward the next transaction. Okay, the next transaction is happened on January 21st, representing overnight McParren negotiated with both the city of Santa and Metropolitan to purchase an abandoned bus garage. Okay, on January 21st, Overnight Auto Service, which is basically a company,
जिसकी हम जिसका जर्नल हम बना रहे हैं, जिसकी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसकी ट्रांजैक्शन को हम एनालाइज करना सीख रहे हैं। सो वो जो कंपनी है वो ओवरनाइट ऑटो सर्विस कंपनी है। ओवरनाइट ऑटो सर्विस कंपनी परचेज द लैंड, इट्स परचेज अ लैंड। इस कंपनी ने एक लैंड परचेज की है फ्रॉम अ सिटी फॉर $52,000 कैश। It pay a cash and purchase a land. Now here are the two assets which are affecting. One is a land and the second one is a cash. Yes, the asset land is increasing by $52,000 and the asset cash is decreased by the 52,000. They are the two assets which are affecting. The one is a land and the second one is a cash. The one asset is increasing and the second asset is decreasing. So when the asset is increasing, then it should be recorded in the debit side by the amount of 52,000, and when it decreasing, which is cash, which is decreasing because we are paying, the company is paying. So if the company is paying, so it's mean the cash is decreasing, the asset is decreasing, so it will be recorded in the debit side. So land will be recorded by $52,000 in the debit side and the cash in the with the value of $52,000 in the credit side. This is next transaction, third one, January 22nd. January 22nd को क्या किया है जी? Overnight completed the acquisition of its business location by purchasing a building from MTA. कंपनी ने बिल्डिंग परचेज की है, कंपनी ने MTA से बिल्डिंग एक्वायर की है। सो जब बिल्डिंग एक्वायर की है, द परचेजिंग प्राइस वाज $36,100 सॉरी, कंपनी के जो परचेजिंग प्राइस है, जो लैंड की प्राइस है, जो लैंड की वैल्यू है जो कंपनी ने एक्वायर की है, दैट इज द $36,000. ओवरनाइट मेड a 6,000 कैश डाउन पेमेंट and issued a 90 days non-interest bearing note payable for the remaining $30,000. कंपनी ने किया क्या है जी? कंपनी ने 60,000 की जो है $60,000 की अमाउंट की एक बिल्डिंग एक्वायर की है अपनी कंपनी के लिए, अपने ऑपरेशंस के लिए, और $36,000 उसने पे नहीं किया, उसने सिर्फ $6,000 कैश जो है वो पे किया है, और रिमेनिंग अमाउंट उसने एक नोट बनवा लिया है कि मैं 90 डेज के अंदर अंदर पे कर दूंगा, विद इन द 90 डेज पे कर दूंगा, विच इज द नोट पेबल. हियर इज अ मेंशन. नोट पेबल बेसिकली इज अ प्रोमिसरी नोट विच इज इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न. सो ये एक पेपर की फॉर्म में होता है, रिटर्न होता है, और इसकी वर्थ कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है. अगर कोई नोट पेबल पे नहीं करता या इस ऑब्लिगेशन को पे नहीं करता तो आप उसे सू कर सकते हैं, आप उसे कोर्ट में ले जा सकते हैं. लेकिन अगर नोट्स पेबल की जगह यहाँ पर वर्ड अकाउंट्स पेबल आ जाता है, तो अकाउंट्स पेबल की अमाउंट अगर पे नहीं होती है तो आप उसे कोर्ट में नहीं ले जा सकते, आप उसे सू नहीं कर सकते. सो है क्या कि कंपनी ने 36,000 का अगर बिल्डिंग खरीदी है तो 6,000 उसने कैश पे कर दिया है, लेकिन 30,000 जो कैश है वो विद इन 90 डेज, विद इन 3 मंथ्स जो है वो पे कर देगा. अब इसमें हमने जो है एनालाइज क्या करना है, पहला काम जो हमने एनालाइज करना है कि हमने अकाउंट्स को देखना है कि अकाउंट्स कौन कौन से अफेक्टेड हो रहे हैं. सो पहला अकाउंट जो कि अफेक्ट हो रहा है वो हमारा एसेट है, विच इज बिल्डिंग. जो बिल्डिंग एक्वायर कर रही है तो बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है. And the second account which is affected is also a asset side, which is cash, decreasing by the $6,000. And the third account which is affecting is a liability. Notes payable is a liability because company have to pay the 30,000 within the 90 days. So 90 days का जो एक नोट कंपनी को इशू हुआ है कि वो 30,000 पे करेगी 90 डेज के अंदर अंदर, तो ये कंपनी की एक लायबिलिटी है. सो कंपनी की लायबिलिटी इफेक्ट हो रही है, विच इज इंक्रीजिंग. कंपनी की ऑब्लिगेशन बड़ी है बिकॉज कंपनी को ऑब्लिगेशन पे करनी है. सो इंक्रीज इन एसेट्स आर रिकॉर्डेड बाय द डेबिट बिल्डिंग, जो कि इंक्रीज हो रहा है. सो बाय $36,000 we will record in the debit side, and decrease in the assets are recorded by the credit which is the cash. 6,000 कैश जो है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, सो हम इसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे. और नोट्स पेबल भी हमारा एक अकाउंट है जो कि $30,000 है, जो कि लायबिलिटी है, और दिस लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, सो दैट्स व्हाई वी विल रिकॉर्ड इन द क्रेडिट साइड. स्टूडेंट्स,
इफ वी विल जस्ट कंसीडर द कैश एंड द बिल्डिंग, अगर हम सिर्फ ये दो अकाउंट्स कंसीडर करें तो हमारा अगर डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस है वो बिल्कुल भी बराबर नहीं आएगा. वी विल डिनाई द रूल ऑफ द बैलेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विल बी इक्वल. $36,000 एंड $6,000 ये बिल्कुल भी बराबर नहीं आएंगे अगर हम इसे इग्नोर कर देते हैं. अगर हम लायबिलिटी के अकाउंट को कंसीडर नहीं करते तो हमारे ये दोनों साइड्स के बैलेंस जो है डेबिट और क्रेडिट के बिल्कुल भी इक्वल नहीं आएंगे. सो कीप इन योर माइंड कि जब भी आप ट्रांजैक्शन को एनालाइज करें, जब भी आप ट्रांजैक्शन को एक एंट्री की फॉर्म में लेके आएँ, सो आपके दोनों साइड्स के बैलेंस बिल्कुल इक्वल होने चाहिए. और ये उसी सूरत में होगा, और ये डेफिनेटली इक्वल होते हैं, लेकिन ये उस सूरत में होगा जब आप ट्रांजैक्शन को एक्यूरेटली जो है वो एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं और उनका किस किस साइड पे, डेबिट या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्डिंग होगी. On January 23rd, overnight purchased tools and equipment on account from Snappy Tools. The purchase price was $13,800 due in 60 days. ओके, ओवरनाइट ने क्या किया है कि इक्विपमेंट एंड टूल्स जो हैं वो ऑन अकाउंट का वर्ड जहां पे भी आपको ट्रांजैक्शन में नजर आता है, अगर तो कंपनी ने खरीदा है, ठीक है, और पे करना है तो वो पेएबल्स होंगे. अगर कंपनी ने सेल किया है और रिसीव करना है कैश और ऑन अकाउंट का वर्ड आ गया है, कैश का वर्ड नहीं आया, तो वो हमेशा रिसीवेबल होंगे. आई रिपीट, if the company is purchasing on account, then you will use the word accounts payable. If not, mention the notes payable. And if the company is selling and not receiving the cash but selling on account, so it's mean the accounts receivable will generate. Fine. So company purchasing tools and equipment, कंपनी टूल्स एंड इक्विपमेंट परचेज करी है और ऑन अकाउंट परचेज करी है. इन सिंपल वर्ड, उसने उधार पे जो है वो लिए हैं, उसने भी कैश पे नहीं किया. और जो इसकी प्राइस है वो 13,800 है, $13,800 उसकी जो है वो प्राइस है, और 60 डेज यानी 2 मंथ के अंदर उसे पे करनी है. अब हम इसको अगर एनालाइज करें तो 2 अकाउंट्स आर अफेक्टिंग. द फर्स्ट वन इज एसेट. Tools and equipment are asset for a company. So tools or equipment are increasing because the company is purchasing the equipments. So assets are increasing. So if the assets are increasing, so increases in assets are recorded by the debit. Fine, with the amount of 13,800. The second part, on account. Company, this is the obligation of a company to pay a cash within the 60 days. So obligation mean liability. Obligation is increasing, liability is increasing. So if liability is increasing, it will be recorded by the credit side. So increases in liability are recorded by the credit side with the amount of $13,800. So tools and equipment recorded in the debit side, and accounts payable will be recorded in the credit side. Hope you are getting my point. These are the tools and equipment which the company is purchasing on account. On account is here mean the cash will pay within a 60 days, not at the same time. अभी कैश पे नहीं किया कंपनी ने. अगर कंपनी ने कैश पे किया होता तो टूल्स एंड इक्विपमेंट डेबिट होते और कैश हमारे यहाँ पर क्रेडिट होता, फिर 2 एसेट अकाउंट अफेक्ट हो रहे होते. लेकिन अभी इस टाइम यहाँ पर क्योंकि ऑन अकाउंट परचेज किया है तो एक एसेट अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और एक लायबिलिटी अकाउंट अफेक्ट हो रहा है. On January 24th, overnight found that it had purchased more tools than it needed. ओफो, कंपनी को क्या रियलाइज हुआ है, जो उसने टूल्स ज़्यादा परचेज कर लिए हैं जितने उसे चाहिए थे. On January 24th, it sold the excessive tools on account to Act Tubing at the price of $1,800. The tools were sold at the price equal to their cost, so there was no gain or loss on this transaction. कंपनी को जनाब ये रियलाइज हुआ है कि कंपनी ने जो है वो टूल्स ज़्यादा परचेज कर लिए हैं, और जनवरी 24 को कंपनी ने क्या किया कि जितने भी एक्सेसिव टूल्स थे, जितने भी एक्स्ट्रा टूल्स थे, जितनी उनको ज़रूरत नहीं थी,
कंपनी ने क्या किया है कि कंपनी ने वो टूल्स वापस कर दिए हैं, वापस नहीं की, आई मीन सेल कर दिए हैं कंपनी ने। सो कंपनी ने वो टूल्स सेल कर दिए हैं और उसकी जो प्राइस है वो 1800 है, और ये जो प्राइस है कुछ टूल्स वापस किए हैं, ठीक है, और उसने उतनी ही अमाउंट पे टूल्स वापस किए हैं, उतनी ही वैल्यू पे टूल्स वापस किए हैं जितने पे उसने खरीदे थे। ना तो उसने एक्स्ट्रा अमाउंट की किए हैं कि उसे गेन हो, ना उसने उससे कम प्राइस पे किए हैं कि जिससे उसको लॉस हो। सो जितनी प्राइस पे उसने खरीदे थे उस प्राइस पे उसने जो एक्स्ट्रा टूल्स थे वो रिटर्न कर दिए हैं, रिटर्न आई मीन सेल कर दिए हैं। सो इसमें जब हम एनालाइज करेंगे तो जब टूल्स एंड इक्विपमेंट कंपनी परचेज करी थी तो एसेट इंक्रीज हो रहा था। ओके, रिकॉल द प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस ट्रांजेक्शन। जब हम टूल्स एंड इक्विपमेंट बाई कर रहे थे तो कंपनी को क्या हो रहा था, कंपनी का एसेट इंक्रीज हो रहा था। हियर बिकॉज द टूल्स आर एक्स्ट्रा, और कंपनी को जब रियलाइज हुआ तो कंपनी उसे सोल्ड करी है। सो सोल्ड करी है तो टूल्स जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। जब वो डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, विद द वैल्यू ऑफ $1800। ओके, हियर इज आल्सो वर्ड ऑन अकाउंट। आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएगा कि उसने कैश पे जो है वो सोल्ड किए हैं। अगर आप इसको रीड आउट करें इस ट्रांजेक्शन को तो कहीं पे ये चीज मेंशन नहीं है, ये पॉइंट मेंशन नहीं है कि कंपनी ने जो टूल्स हैं वो ऑन कैश सोल्ड किए हैं। कंपनी ने जो टूल्स सोल्ड किए हैं वो ऑन अकाउंट सोल्ड किए हैं। सो कंपनी ने क्या किया है कि एक तो इसका एसेट जो है वो डिक्रीज हो रही है विद द अमाउंट ऑफ 1800, और ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट्स मीन कि कंपनी कुछ टाइम पीरियड के बाद व्हाट इज द डिसाइडेड डेट, कंपनी उस डेट के ऊपर कैश रिसीव करेगी। अभी कंपनी को कैश रिसीव नहीं हुआ। ऑन अकाउंट का मतलब ये है कि कंपनी ने अभी जब ट्रांजैक्शन की है, कंपनी ने जब टूल्स सेल किए हैं तो कंपनी ने ऑन अकाउंट किए हैं। फाइन। सो जब ऑन अकाउंट सेल करने हैं, जब ऑन अकाउंट आपने कैश रिसीव करना है तो आप रिसीवेबल बन जाते हैं। फाइन, अब आप पेएबल नहीं बनते, आपकी लायबिलिटी नहीं होती है, ये आपका एसेट होता है, कैश की फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप कुछ टाइम पीरियड के बाद कैश रिसीव कर लेंगे। यू आर स्टैंडिंग एट द पॉइंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। सो here are the two accounts which are both from the asset side. The one is the tools which are decreasing, and the second one is also from asset side, which is account receivable, which is increasing. So increasing in assets are recorded by the debit and decreasing in assets are recorded by the credit. टूल्स एंड इक्विपमेंट, अकाउंट रिसीवेबल हमारे डेबिट होंगे क्योंकि ये हमारा एसेट है, हम कुछ टाइम पीरियड के बाद कैश रिसीव करेंगे। दिस इज नॉट अ कैश, लेकिन ये कैश के जो है वो इक्विवेलेंट भी मैं इसको नहीं कह सकती। दिस इज आल्सो एसेट, मींस यू विल रिसीव द कैश आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। कुछ टाइम के बाद जो है वो आप कैश रिसीव कर लेंगे, ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। दीज आर द कैश कन्वर्टेबल्स। एंड टूल्स एंड इक्विपमेंट है, टूल्स एंड इक्विपमेंट जो हैं वो आपका एसेट है। सो दो एसेट अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक डेबिट साइड पे एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। सो इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट पे रखेंगे, डेबिट पे रखेंगे, जो डिक्रीज हो रहा है वो हम उसको क्रेडिट पे रखेंगे। 26 जनवरी को ओवरनाइट ने क्या किया है जी, ओवरनाइट रिसीव्ड $600 in partial collection of the account receivable from egg to wing. कंपनी ने पार्शियल पेमेंट कलेक्ट की है। कंपनी ने इन द प्रीवियस ट्रांजैक्शन कंपनी ने क्या किया था कि अपने कुछ टूल्स जो हैं वो सेल किए थे, और सेल करने के बाद उसको सेल ऑन अकाउंट किए थे। फाइन, ऑन अकाउंट मीन कैश रिसीव नहीं हुआ था। अब 26 जनवरी को क्या हुआ, आफ्टर 2 days कंपनी ने कैश रिसीव किया है, लेकिन जो पूरा का पूरा कैश था वो रिसीव नहीं किया। पार्शियल कलेक्शन, टोटल अमाउंट में से सिर्फ $600 जो है वो कंपनी ने खरीदा है। दिस इज अ पार्शियल कलेक्शन। सो कंपनी इज रिसीविंग द पार्शियल कलेक्शन। सो लेट्स एनालाइज दिस ट्रांजेक्शन. Which type of accounts are affecting? The one account is affected is asset, mean cash. कंपनी कैश रिसीव कर रही है, कंपनी का कैश इंक्रीज हो रहा है, दिस इज द एसेट। सो इफ द कैश इज इंक्रीजिंग, एसेट इंक्रीजिंग, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड कैश। और अगर कंपनी का अकाउंट रिसीवेबल जो है वो कंपनी के डिक्रीज हो रहे हैं, फाइन,
कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल पहले ज़्यादा थे, मैंने आपसे कहा था दीज आर द कैश कन्वर्टेबल, एक टाइम पीरियड तक ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, हम इससे हमें कैश रिसीव हो जाता है। सो अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट हो चुके हैं। सो वन एसेट इज डिक्रीजिंग, सो ये वाला एसेट जो है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, रिसीवेबल्स। सो कैश टू अकाउंट रिसीवेबल, हम इसे पढ़ते इस तरह से हैं, कैश टू अकाउंट रिसीवेबल बाय $600 by $600. This is the last transaction class. Overnight made a 6,800 partial payment of its account payable to Snappy Tools. ये बड़ी अच्छी पोजीशन होती है कंपनी की कि वो टाइमली पे भी कर लेती है, और बड़ी अच्छी स्ट्रेटजीज होती हैं कंपनी की, क्रेडिट पॉलिसीज बड़ी अच्छी होती हैं अगर वो टाइमली कैश रिसीव भी कर लेती है। तो कंपनी की जो है वो क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है। कंपनी जो है वो पार्शियल पेमेंट करी है 6,800 अपने स्नैपी टूल्स कंपनी को, जहां से उसने टूल्स खरीदे थे, ऑन अकाउंट खरीदे थे टूल्स। तो अभी उसका एक पार्शियल पेमेंट जो है वो कंपनी करी है, और जो पार्शियल पेमेंट करी है वो 6,800 पार्शियल पेमेंट कंपनी करी है। अब 6,800 जो पार्शियल पेमेंट करी है, इसमें अकाउंट्स कौन कौन सी हैं? द वन अकाउंट इज अ कैश की फॉर्म में पेमेंट हो रही है। सो द वन अकाउंट विच इज डिक्रीजिंग इज कैश। The second account which is decreasing is accounts payable. Accounts payable, हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, हम कैश पे कर रहे हैं। हमारी एक लायबिलिटी थी कि हमने 90 डेज के अंदर अंदर कैश पे करना है, सो उसका कुछ पोर्शन हमने पे कर दिया, तो इसका मतलब है कि हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, हमारे अकाउंट्स पेएबल डिक्रीज हुए हैं। सो टू अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, और एक है एसेट और एक है अकाउंट लायबिलिटी, दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। जब एसेट्स हमारे डिक्रीज होते हैं तो हम उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं विच इज कैश। कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है और हम इसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारे लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो हम उसे डिक्रीज होती हैं तो हम उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। सो इस तरह से हमने कुछ ट्रांजैक्शंस देखी हैं। आई रिपीट कि जब भी आप एनालाइज करेंगे, जब भी आप शुरू करेंगे, आपके पास जो स्टार्ट होगा वो आपको ये ट्रांजैक्शन प्रोवाइडेड होंगे विद डेट। आपको ये ट्रांजैक्शन प्रोवाइड की जाएंगी। ये ट्रांजैक्शन में आपने एनालाइज क्या करना है? अकाउंट्स को आपने देखना ये है कि क्या ये अकाउंट एसेट साइड का है, क्या ये अकाउंट लायबिलिटी साइड का है, कि क्या ये अकाउंट ऑनर्स इक्विटी की साइड का है। अभी जो है वो इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स की कोई ट्रांजैक्शन हमने नहीं की है, विच इज़ फ्रॉम रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। So in the later lectures in the which we will make practice of preparing a journal, हम उसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैं डेफिनेटली उन ट्रांजैक्शंस, उन अकाउंट्स को भी कंसीडर करूंगी, हम उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी जब आपके पास ये ट्रांजैक्शन आती है तो इस ट्रांजैक्शन में आपने सबसे पहला काम जो ये करना है कि आपने अकाउंट्स को एनालाइज करना है। अब वो सेम अकाउंट्स, सेम साइड के अकाउंट्स भी हो सकते हैं, मतलब दोनों अकाउंट्स ही एसेट्स के हो सकते हैं। सो कीप इन योर माइंड, अगर दोनों अकाउंट्स सेम साइड के होते हैं, मीन दोनों एसेट हैं या दोनों लायबिलिटीज हैं, तो उनमें से दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होगी। एक इंक्रीज हो रहा होगा, एक डिक्रीज हो रहा होगा। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट जो है वो अकाउंट्स हैं, एक एसेट है एक लायबिलिटी है, तो एक हमेशा इंक्रीज होगा इसमें से और एक हमेशा डिक्रीज होगा। सो पहले आप अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करें। सेकंड स्टेप ये है कि आप ये फाइंड आउट करें कि अकाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है और कितनी अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। जब आप ये सक्सेसफुली फाइंड आउट कर चुकी हैं और तो आपको जो है ये देखना है कि हमने अब इस पे जो डेबिट क्रेडिट के रूल अप्लाई करने हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। तो आप उस पर डेबिट क्रेडिट के रूल अप्लाई करें कि अगर अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट साइड पे, और अगर अकाउंट डिक्रीज हो रहा है तो ये कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे। सो इनको आपने बड़ा केयरफुली जो है वो एनालाइज करना है। इफ यू आर बिकम सक्सेसफुल टू एनालाइज अ ट्रांजैक्शन, you will be a very good in accounting cycle. It's very important to analyze a transaction. Practice will make you people perfect.
सो अभी आपको मे बी ये मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आप जो है वो विद इन फ्यू सेकेंड किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर लेंगे. सो होप यू विल मेक प्रैक्टिस एंड यू गेट माई पॉइंट्स एंड दिस लेक्चर. कोई भी पॉइंट, कोई भी डिस्कशन होगी तो हम इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लास में इसकी डिस्कशन भी करेंगे. नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन होंगी, आप नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन के एग्जांपल लेके आइए, हम उनको ऑनलाइन डिस्कस करेंगे कि इसमें से अकाउंट्स कौन से हैं, इनमें इनकी अमाउंट क्या है, इस पे डेबिट क्रेडिट का कौन सा रूल अप्लाई होता है. सो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच क्लास. इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल प्रिपेयर द जर्नल. इन्हीं ट्रांजैक्शन से हम जर्नल प्रिपेयर करेंगे, उसकी फाइनल शेप क्या होती है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.